Hello, hi, and assalamu alaikum. So we are back on What's Happening with Sara, but this time this is going to be very special because I have someone very close to me, a very good friend, a content creator, and someone जिसने अपनी जिंदगी में वाकई बहुत मेहनत की है, and we can look up to her. So please welcome none other than Dua Amjad. तालियां देखिए, वो भी अपने लिए तालियां ही कर रही हैं. अच्छा दुआ, so what's happening? What's happening in Dua's life? A full-time mother. And I'm just focusing on my daughter right now, focusing to be a mother. I think it's a completely new phase in my life and it's all about her right now. from a social media user to a blogger, so from 0 followers to someone with thousand of followers, and I know that most of the people, because I have seen you working, तो जब भी हम कहीं भी most of you watching don't know कि हम जब भी कहीं पर मिलने जाते हैं, I can see that a lot of girls look up to दुआ और बहुत सारी मिलने आती हैं with बहुत सारा प्यार एंड दुआएं. तो ये जर्नी थी, तो was it hard or just easy वाली? I think it was very much not decided at all. पता है तुम्हें तो, but obviously you were telling other people. So I've never decided to be a blogger because when I started there was nothing like a thing, like blogger wasn't a thing at that time. The term was found out later on. When I stepped into this, I was studying in Kinnaird College and I was just famous. I don't know for what reason, but I was just famous. So I made my account public. तब उस वक्त मुझे बड़ा बैश भी मिलता था कि यार इस लड़की का अकाउंट पब्लिक है, क्यों पब्लिक है, और ये हम बात कर रहे हैं 2016 की. I graduated in 2016. So 2015 या 16 की हम बात कर रहे हैं. So 2015-16 में I made my account public for no reason because जो भी मैं पहनती थी लोग मुझसे पूछते थे कि कहाँ से लिया है, कहाँ का है, जबकि बहुत ही मीडियोकर होता था, नथिंग वेरी फैंसी. सो आई जस्ट मेड माई अकाउंट पब्लिक. अच्छा चलो ठीक है, दिस विल हेल्प अदर पीपल. वहां से ऑनलाइन पेजेस ने रीच आउट करना शुरू किया, ऑनलाइन पेजेस ने कहना शुरू किया कैन यू प्लीज वेयर दिस PR packages, something like that. So I felt myself in heaven at that time. Oh my God, I'm getting free stuff. But I did not know what blogging actually was at that time. So later on, obviously, it was discovered and it became a thing, and then social media and then digital creators, content creators. अगर हम तो बात करें one turning point in इस सारी whole blogging journey में, तो वो क्या था? I think maybe God. I truly believe that it was something that God sent my way because honestly I belong from a very conservative family. बहुत ही conservative और बहुत ही different background से मैं belong करती हूँ. तो having a public account was a very big thing, considered a very big thing. I still remember even my friends coming to me and telling me that can you please make your account private because our family talks about it, and then later on they started asking me for shout outs. So yeah, this is the journey, but I think God helped me a lot. He showed me a way and I just kept going. अच्छा दुआ, अगर हम बात करें ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग के बहुत सारे फायदे भी होंगे, बहुत सारे नुकसानात भी होंगे. वी वांट यू टू शेयर कि कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं. आई थिंक बहुत सारे फायदे हैं. सोशल मीडिया गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म, नंबर 1. आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ, यू कैन पुट आउट एवरीथिंग इन पब्लिक, यू कैन शेयर योर थॉट्स. एंड जैसे हम देख भी रहे हैं कि जो टॉपिक्स कभी भी डिस्कस नहीं होते थे वो सोशल मीडिया की वजह से मेन टॉपिक्स बन गए. बिल्कुल. लाइक फ्रॉम 0 to 100 वाली रीच हुई है, और दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. वी नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कितनी बात होने लग गई है, फेमिनिज्म के बारे में, पॉजिटिव फेमिनिज्म के बारे में कितनी बात होने लग गई है. और पहले आई थिंक इवन इन आवर ओल्डर जनरेशंस ये बात करना भी गुनाह होता था, बट नाउ वी आर अवेयर ऑफ आवर राइट्स, वी नो व्हाट टू टॉक, वी नो व्हाट टू डू, एंड वी कैन जस्ट पुट इट आउट इन पब्लिक. सो बहुत ज्यादा फायदे हैं आई वुड बिलीव. नुकसानात भी हैं थोड़े आई वुड से, और वो सबसे बड़ा ये है कि पीपल बिलीव दैट दे हैव द राइट टू हेट ऑन यू, दे हैव द राइट टू से व्हाटएवर बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर. क्या आपका पब्लिक अकाउंट है और वो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं. एग्जैक्टली दे कैन गिव यू as much hate as they want to just because you have a public account. जो कि मुझे लगता है कि नहीं, किसी का पब्लिक अकाउंट होने का मकसद ये नहीं है. इवन आप अगर एक सेलिब्रिटी भी हो तो आप सेलिब्रिटी इसलिए नहीं बने कि कोई भी आके आपको कोई हेट दे दे या आपको किसी
नेगेटिव रेज में कन्वर्ट कर दे. अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, यू कैन जस्ट अनफॉलो, ब्लॉक भी कर सकते हैं. मूव ऑन. या यू कैन जस्ट, हमें कितना कुछ सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं लगता, वी डोंट एग्री टू एवरीथिंग दैट वी सी ऑन सोशल मीडिया ना, बट वी डोंट जस्ट गो ऑन एंड कमेंट एंड गिव देम हेट, वी जस्ट इग्नोर एंड मूव ऑन विद लाइफ. सो आई थिंक ये वाली चीज मुझे बहुत नेगेटिव लगती है. अच्छा दुआ, यू गॉट मैरिड लास्ट ईयर एंड वी सॉ के वहाँ पर दुआ की शादी पर दुआ के सब दोस्त आए हुए थे, एंड जब दुआ की शादी हो रही थी तो दुआ की शादी वॉज द टॉक ऑफ द टाउन. तो यू गॉट मैरिड, वॉज इट द राइट पर्सन, वॉज इट अरेंज, वॉज इट लव? शादीशुदा वाली दुआ की जिंदगी कैसी चल रही है? अभी जब मैं शो पे आई थी तो मैंने सबसे पहले आके सारा को ये कहा था कि जब मैं पहली दफा टीवी शो पे गई थी तो आई फाउंड माई हस्बैंड. और अब दूसरी दफा what is going to happen now? So I met my husband through this. He was working with Neo Channel at that point and I was working with Superior University and they were both linked. और उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, वरना मैं नहीं जाती. आज सारा के लिए आई हूँ, तब जॉब की वजह से जाना पड़ा था मुझे. एंड दे फोर्स्ड मी अ लॉट एंड आई मेट हिम देयर. ही वाज सच अ गुड लुकिंग, वेरी नाइस, वेल ऑर्गेनाइज्ड जेंटलमैन. और वो भी शेफ, जो कि मुझे पका के वो कुछ नहीं खिलाता, बट या दैट वाज अ प्लस पॉइंट. सो आई मेट हिम देयर. ही वाज अ ट्रू जेंटलमैन एंड we were just done with show. हमने बातचीत नहीं की थी, but later on we started working on some projects because I was the social media manager. और फिर उसके बाद we just it was God written, I believe, and I think he's definitely the right person for me. Nobody else can handle me the way he handles me. अच्छा दुआ, जब आपकी शादी हुई तब से अब तक, एंड सिंस यू हैव अ बेबी, यू हैव जज़ा विद यू, तो सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो विद योर कंटेंट क्रिएशन, घर भी, जज़ा भी? आई बिलीव इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और मुझे लगता है कि हमारी जो ओल्डर जनरेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा टैबू था कि आप इसके बारे में ये बोल सकें खुल के कि हैविंग चिल्ड्रन इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग. तब ये कहा जाता था कि नहीं नहीं मत बोलो ना, शुक्रापन है. बट इट डेफिनेटली इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग. जितना ही वो आपके लिए एक नेमत होती है ना, उतना ही वो मुश्किल भी होता है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड आई थिंक आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन हर राइट नाउ. आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माई प्रेगनेंसी. ऑल्सो आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट, एंजॉय, डू एवरीथिंग. But right now everything is kind of, depends on her routine. So it is about Jaza right now. जब जज़ा पैदा हुई थी दुआ, how was your feelings? कि मतलब कैसा लगा? I know कि बहुत ही out of the world होंगी, पर फिर भी. Honestly, I had a very long labor. So I don't really. उस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा dizzy थी, तो drowsy हुई भी थी बहुत ज़्यादा dizzy हुई भी थी. तो उस वक्त मुझे कुछ इस तरह से समझ नहीं आया था, बट इट फेल्ट लाइक समथिंग completely different, as if I was born. And definitely I was born as a mother. अच्छा, अगर हम बात करें जज़ा की, तो जज़ा ज़्यादा मामाज गर्ल है या जज़ा डैडीज गर्ल है? मामाज गर्ल. यानी डैडीज गर्ल नहीं है वो. सुन ले फुरकान भाई. फुरकान ने रिजेक्ट कर देना इस बात को. है भी, लेकिन अभी बिकॉज ऑब्वियसली फुरकान इज वर्किंग, उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े लंबे हैं. सो शी इज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद मी. जबकि पहचानती वो हम दोनों को बहुत ज्यादा है, बट थोड़ी शी इज into me and she is just like crazy about me. अब क्योंकि हमने दुआ से इतनी बातें कर ली हैं, and I can literally talk for hours and hours, और वो बातें कभी खत्म नहीं होंगी. But we have a game in which I will name one content creator or a TikToker and you have to describe them in one word. Okay, TikTokers, I hope I know them. Okay, so Kawal Aftab. Kawal is a very dear friend. मैं उसको तब से जानती हूँ जब उसके 60,000 followers थे, and I think she's a gem of a person. She doesn't change, और वो इतना से भी नहीं बदली. So she is a very gem of a person. I don't know Jannat personally, but I have met her on several occasions. I think she's a really nice person, very down to earth, I would say. Minahil Malik. I don't know Minahil Malik, but I have seen her content. I think she's a great dancer, and I love her acting skills. Lara Ibrahim. I love Lara Ibrahim. Lara, I think, is a phenomenal content creator. I love her content. I would say inspirational content. Sara Chaudhary. Sara Chaudhary, oh my god, the queen of Lahore's content creation. Sara Chaudhary आजकल थोड़ा सा कम content बना रही हैं, but very creative, very different content, और I think लाहौर में one of the finest content creators in the world.
Okay, so Dua, we are going to play a game which is Never Have I Ever. ठीक है? So the first one is Never have I ever used someone's content without giving credit. Never. Spread a rumor about someone. Never. So never have I ever cheated in a test or an exam. A lot. So you have. I have. Never have I ever pretended to be sick to skip something, work, school, काम शाम कुछ भी. I have a lot of times. Never have I ever regretted something I posted on social media. No. कभी भी नहीं. Never. I know what I'm posting, so. So never have I ever dated someone twice. के मतलब you are with someone, पहले breakup हो गया, फिर patch up हो गया, फिर. I have. ठीक है. I think we all do. I fight with my husband a lot. Even before marriage, I fought with him a lot, and then we. So Dua, what's your hidden talent? वो ऐसा talent जो नहीं देखा किसी ने भी, but we know कि दुआ में वो talent है. I don't think मेरे में कोई इतना talent. But I think. What do you think? So दुआ is वो वाला person कि अगर दुआ को किसी ने कुछ बोल दिया है, दुआ कभी भी उनके पीछे कोई बात नहीं करेगी, दुआ सीधा मुंह पर जाएगी and she will confront. हाँ, but तो I think everybody knows that about me. सबको पता है कि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. पर कोई ऐसा टैलेंट होगा, कोई ऐसा टैलेंट दुनिया में जिसका किसी को भी नहीं पता और दुआ वो आज बताएंगी. आई थिंक सबको सब कुछ ही पता है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है मेरे में. अच्छा दुआ, मेजॉरिटी जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो अब टिकटॉक पर भी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी टिकटॉक पर हैं. पहले दे यूज्ड टू टॉक अबाउट के हाउ टिकटॉकर्स का जो कंटेंट होता है वो क्रिंज होता है और वो उसके बारे में हमेशा एक उनकी अलग राय होती थी. बट नाउ ऑल ऑफ देम आर ऑन टिकटॉक. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Honestly, I have never commented on anybody's content ever. ऐसा बहुत दफा होता है कि मुझे कुछ नहीं पसंद आता, आई जस्ट स्किप. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी को बैश किया हो या किसी के बारे में पब्लिकली आगे कहा हो कि देयर कंटेंट इज क्रिंज, अनटिल अनलेस उसको पब्लिकली कुछ मसला ना हो. टिकटॉक के बारे में आई वुड से कि आई टोटली बिलीव दैट हूएवर गॉट फेमस इट वाज देयर लक. I am a true believer of that. कि it was their luck, it was their fate, and they got from it, and they are living their life. So I am happy for all the TikTokers. Yes, I downloaded TikTok very later, and that is only because I liked some of the funny things. और मैंने आज तक TikTok के लिए कुछ भी क्रिएट नहीं किया. मैं जो Instagram पे पोस्ट करती हूँ वो कभी 4 महीने 5 महीने बाद मैं एक वीडियो TikTok पे. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुआ को TikTok नहीं पसंद इतना? मतलब TikTok is not my cup of tea. ये कह सकते हैं. मतलब as a entertainment application, I think it's great, but maybe it's not. But दुआ हम वही जानना चाह रहे हैं, why दुआ थोड़ा सा TikTok पे ये करती है कि it's not my cup of tea. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि mostly TikTok is about a lot of acting, a lot of dance steps, and some moves and all, और music के बारे में. I'm not very comfortable on dancing on social media. Yeah. आपने अगर मेरा कंटेंट देखा भी है तो मेरा कंटेंट बड़ा सटल सा और बड़ा इन बाउंड्रीज है. इवन दो आई लव टू डांस, बट आई वुडंट डांस फॉर फेम. सॉरी, बट या. ओके, सो अब हम दुआ को इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत मजे की गेम से, विच इज स्पिल और ड्रिल. तो या तो दुआ को सच बोलना पड़ेगा और नहीं तो इस मजेदार कॉफी के बाद दुआ को हम देंगे ग्रीन चिली, विनेगर, नमक, लेमन और चिली सॉस. सो बस दुआ ने करना ये कि सच बोलना है और नहीं तो फिर दुआ ने ग्रीन चिलीज खानी है. तो दुआ एक चिट उठाएंगी एंड लेट्स सी कि उसमें से क्या सवाल निकलता है. ओके दुआ, पर वो चिट मैं ही पढ़ूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दुआ कोई चीटिंग करे और इस गेम में चीटिंग इज नॉट अलाउड. ठीक है. I hope the question serves me well. One TikToker that you don't like or you just hate, उनका जो भी content है you don't like watching. I don't know about TikTokers a lot. I just know some of my friends, that's it. पर फिर भी कभी स्वाइप करते हुए किसी का देखा होगा. नहीं तो ग्रीन चिली भी है हमारे पास. Why don't we move to like bloggers or Instagram? I don't know, like, but okay fine. Let me say. चलो हम दुआ के लिए चेंज कर लेते हैं. वन ब्लॉगर और अब चेंज कर रहे हैं. वन ब्लॉगर दैट यू डोंट लाइक. नफरत है दुआ को उनके कंटेंट से. क्या कंटेंट है यार, बदलो इसको.
हाँ ये है, ग्रीन चिली है, साथ में पानी नहीं मिलेगा, विनेगर भी है, नमक भी है। I would recommend. ठीक है ठीक है ठीक है, ये ले, हमारा ये फेवरेट काम है। पर हम दुआ को ये थोड़ी सी कंसेशन दे सकते हैं कि वो आधी खा ले, लेकिन खानी पड़ेगी। I love chilies. फिर सारी ही खा ले दुआ। आई कैन बेट ऑन दिस कि आज से पहले जितनी भी हमने एपिसोड्स किए हैं, कोई एक ऐसा गेस्ट नहीं था जिसने ग्रीन चिल्ली ऐसे खाई हो जैसे कोई चॉकलेट खा रहा है। दुआ पानी चाहिए? आई एम गुड। दुआ वाकई? तो हम इन सवालों में कुछ और ऐड करते हैं अब। एक और चुन के मिर्ची में रखी हुई वैसे तीखी वाली। मेरा हाल पानी 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 पानी, आंखों से दुआ के आ रहा है पानी, पर उन्होंने नहीं पीना फिर भी पानी। अगला सवाल भी हमारे पास ग्रीन चिलीज है। सो वन व्लॉगर जिसको दुआ समझती है कि दिस इज ओवररेटेड है बहुत, डकी भाई। एंड व्हाई? अभी रिसेंटली आई हैव आल्सो पोस्टेड अबाउट हिम। आई डोंट बिलीव कि उसमें उसका कसूर है, आई बिलीव कि उसमें लोगों का कसूर है। क्योंकि व्हाट आई सी इज कि लोग उसके कमेंट पे इतना उसके कंटेंट पे इतना हेट दे रहे होते हैं, इतना कुछ लिख रहे होते हैं, बट दे स्टिल वॉच इट। सो ही इज अर्निंग फ्रॉम इट, बट एक्चुअली मतलब व्हाट इज दिस के आप कहोगे मेरे 6 मिलियन होंगे तो मैं अटेंड करा के आ जाऊंगा, एंड देन यू आर जस्ट लॉन्चिंग अ ट्रेलर जिसमें कि आप इतने बेड के नीचे रो रहे हो। तो आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली क्रिंज। यू डोंट हैव टू पुट योर सेल्फ रिस्पेक्ट असाइड एंड डू समथिंग लाइक दैट। इस पे ग्रीन चिली नहीं बनती क्योंकि दुआ ने सच बोला है और हमारे पास कहा तो मैंने लिया, बाद में मुझे लग पता गया ये थोड़ी सी तीखी वाली थी। हमारे शो पे तीखी ग्रीन चिलीज होती हैं और दुआ की आंखों से पानी आ रहा है, लेकिन दुआ तब ऐसे एंजॉय कर रही थी जैसे फेवरेट चॉकलेट है दुआ की। I love green chilies. दुआ एक और चिट। ठीक है। अर्निंग आपने मतलब हाउ मच यू अर्न in a month, in days? It completely depends on the campaigns that I'm getting and the kind of work you are doing. So if I'm not getting any campaigns, I'm earning nothing. Zero खाली। पर लेकिन अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो दुआ की पर मंथ इनकम इन बस कुछ हजार है, कुछ लाख है, या कुछ लाख से ज्यादा है? कुछ लाख है। माशाल्लाह। अगली हमारी चेट और दुआ को देख के, क्योंकि दुआ मेरी दोस्त भी है तो उसको देख के मुझे बुरा लग रहा है कि उसकी आंखों से पानी आ रहा है, लेकिन फिर भी ग्रीन चिलीज हमारी तैयार है। नो, मैं सब जवाब दूंगी। ये सारे देखने पड़ेंगे सारे। मैं चाह रही हूँ कोई ऐसा एक सवाल हो ना कि जिसमें से निकल आए। अ रीसेंट पर्सन दैट यू ब्लॉग्ड ऑन इंस्टाग्राम। लाइक समबडी हु इज फेमस, या ब्लॉगर या फिर रैंडम? अब ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, कोई भी जिसको बता दूं। बता दे दुआ। Both of us actually. I think recently I blocked one of my oldest friends, green eyed girl. उसी को मैंने recently block किया because of some issues that we had. उसके बाद से कोई नहीं। ऐसी ग्रीन चिल्ली हमने खिलाई कि उसके बाद दुआ ने बोले सब सच सच सच। ये टू मच ट्रूथ हो गया। ओके, सो द लास्ट चिट फ्रॉम स्पिल और ड्रिल। आई होप कुछ इजी आए। अच्छा जी। सो एन ओवररेटेड इन्फ्लुएंसर। ओवररेटेड इन्फ्लुएंसर आई थिंक बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, क्योंकि आजकल हर कोई तो कंटेंट क्रिएटर बन गया है। बिल्कुल। सो एवरीवन इज नाउ ब्लॉगर। एवरीबडी इज अ ब्लॉगर नाउ, लिटरली। सो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल। जनरली आई डोंट मुझे लगता है कि ठीक है, जो भी whoever is earning from somewhere, it's good for them. So I don't usually comment like that on people कि ठीक है, if they're earning, it's good for them. So I बट फिर भी कोई एक होगा कि जिसको दुआ फाइंड इट वेरी बस रैंडम ओके, या बस दुआ उनके कंटेंट को स्किप कर देती है। मेरा ख्याल दुआ विनेगर पीना चाह रही है। मैं सोच रही हूँ। अच्छा, शायद नमक खाना चाह रही है दुआ। ठीक है नमक। अच्छा, ग्रीन चिली खाना चाह रही है। ग्रीन चिली भी है। फिर दुआ आप सच बोलेंगी। चले ग्रीन चिली ग्रीन चिली। अच्छा ठीक है, दुआ बोल रही है।
दोस्त हैं, इतना सा हम दे देते हैं मार्जिन। जी जी। अच्छा, सारा को मेरे बारे में एक बात पता है कि मुझे लोगों के बारे में इतना पता ही नहीं है, मुझे लोगों के नाम भी नहीं आते। इसीलिए तो मैंने ग्रीन चिलीज मंगवाई थी कि मुझे पता था ये होगा। मैं इतना इनटू माय ओन वर्ल्ड, ये नहीं कि मैं बहुत शौकी हूँ, लोगों को लगेगा कितनी शौकी है, बड़ी चीज है। आई एम इनटू माय ओन वर्ल्ड कि आई एम फोकसिंग ऑन माय फ्रेंड्स, माय फैमिली एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो मैं कभी इतना उस चीज पे फोकस ही नहीं करती हूँ। बट चलो ठीक है, मैं बोल देती हूँ। आई थिंक हिना ने हंसी। आप वैसे भी जहां तक आई नो शी इज ऑल्सो एन होस्ट, और वो इनटू ब्लॉगिंग है बट नॉट दैट मच शायद। हाँ, एग्जैक्टली। शी इज होस्टिंग, आई थिंक। She used to be my friend also. So I never thought that she's going to be, she also never thought, and it wasn't her plan. तो उसका जो content होता है वो बहुत ही, कभी अगर आ भी जाए, we don't follow each other, but अगर कभी सामने आ भी जाए तो वो इतना random होता है और इतना मतलब basics होता है कि आप you just want to skip. अच्छा, दुआ को हमने बहुत स्पाइसी ग्रीन चिलीज खिला दी, सो वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कोई एक ऐसी चीज जो 2023 में दुआ ने सीखी है एंड दुआ इज प्राउड ऑफ। सीखी है, आई हैव लर्नड टू बी मोर पेशेंट, आई वुड से, with my daughter, and I think that will make me more patient in future as well. Because I believe that however I'm going to react is going to affect her, and she'll learn from it. As parents, हमें पता नहीं लग रहा होता, हम कुछ भी छोटी छोटी चीजों पे रिएक्शन जो देते हैं, kids are actually learning from that. So I'm learning to be very calm and patient. If she spills all the milk on me, I'm like, okay, no problem, let's change. So it's like that. I'm learning that. Initially I used to react a lot. Now I'm like that. अच्छा दुआ, ये जो आपने चेंजेस की बात की, अगर हम इन्हीं चेंजेस पर बात करें तो कौन सी ऐसी थोड़ी सी आई थिंक आई वुड कॉल ऐसी टिप्स होंगी, सो इफ समवन वांट्स टू बी अ ब्लॉगर, कौन सी ऐसी टिप्स होंगी जो उनको अपने जहन में रखनी चाहिए टू बी अ ब्लॉगर? I think just try to be yourself. Like you cannot follow a path, somebody's path, and make it your own path. Somebody's path is always going to be somebody else's path. You have to create your own path. So आपका जो hidden talent है, या आपको जो लगता है कि आपका talent है, basically hidden नहीं भी आपका talent है, so उसके ऊपर आप start working on that instead of ये सोचना कि फलाना got famous because of this, so let's start that. You can never do that. For a time being, yes, but then eventually you'll get bored. So जब आप वो करते हो जिसमें आपको मजा आता है, there's no coming back from that. अच्छा दुआ, we see a lot of content on internet. फॉर एग्जाम्पल अरशद रील्स भी है, वी नो दैट दाना अनीर गॉट फेमस फ्रॉम वन वीडियो। व्हाट्स दुआ's टेक ऑन के ये जो लोग अचानक से जिनको रातों रात फेम मिल जाता है, आर दे क्रिएटिंग वर्दी कंटेंट, या बस दे गेट द फेम तो बस अब वो जो भी है लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनको बेशक बुरा भला भी कर रहे हैं लेकिन उनको पसंद, हाँ फॉलो कर रहे हैं। अगेन मैं बहुत शायद स्पिरिचुअल साउंड कर रही हूँ आज, लेकिन मुझे आई एम अ ट्रू बिलीवर कि अगर किसी को एक रील से, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दाना नीर, कि अगर उसको फेम मिला तो अल्लाह ताला ने शायद वो उसके नसीब में फेम लिखा हुआ था, तो अल्लाह ताला फाउंड अ वे टू गिव इट दैट टू हर। सो इफ इट्स हर नसीब और उसका फेट है, सो वी शुडंट फील बैड अबाउट दैट। वी आर गेटिंग अ लॉट, बहुत कुछ हमें मिल रहा है जो और लोगों को नहीं मिल रहा, सो वो हमारी किस्मत है। एंड इफ समबडी इज फेमस ओवरनाइट, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर दैट। अच्छा दुआ, there is a special segment which is a personalized message to someone, और वो भेजेगी दुआ through the camera, through our famous camera on what's happening with Sara. So I'll name one person and you have to send them a personalized message from Dua. Wahi Amjad. Oh, I was hoping that. I didn't know that you were going to give me the name, so I thought that I'll do it for her. Wahi, I think, is a dream sister. And I believe that not everybody deserves a sister like her because she's something and someone very special. और मुझे लगता है कि I am truly blessed to have her in my life. कवल आफ्ताब। कवल को मैं यही कहूंगी कि stay the way you are, extremely humble, down to earth, lovable. So just stay the way you are. You're going great. डकी भाई।
I don't know Ducky, yaar. I've only met him once. He's a very different person off the camera, and he's a completely different person on the camera. So if it's working for him and if it's earning from it, keep going. Your husband? My husband, I would just like to say that I don't appreciate him as much as I should. He's a great father, he's a great husband, and he's doing great for us as a family. And then a very special message from Dua to someone जो कीबोर्ड के पीछे बैठ के they only hate और वो ऐसे कमेंट्स करते हैं जो आई थिंक आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत असर करते हैं. सो अ पर्सनलाइज मैसेज टू ऑल द हेटर्स फ्रॉम दुआ. I would say कि आई एम अ वेरी टफ पर्सन. I have seen a lot in life. Nothing was given to me in a plate. I'm a very tough person. You cannot break me. You cannot. So, but there are people out there you can break actually. So I have no people जिनको बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है एक हेट कमेंट से. आपको लगता है कि आपको 99 इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं, but then just one hate comment and you're affected. Yes, it happens. So don't do that. Maybe you're just sitting out there and sending hate, and that can affect somebody's entire life and their belief in themselves. और दुआ हम ये भी देखते हैं, अभी रिसेंटली एक इंडियन इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने सुसाइड कमिट किया और उनका भी यही था कि बिकॉज उन्होंने कोई वीडियो पोस्ट की और सब लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स की एकदम बारिश सी कर दी एंड ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ all the hate and negative comments. That's so sad. I don't know about him, but I truly feel bad about that, and I think that can happen. Social media has become toxic because of some toxic people, and honestly, trust me on that I've received so much hate in life, and not just hate. People try to get into my personal life, message my husband about various things, about past and about whatever, and then just make up things and text him. So it's sad. It's sad, my husband and I, we trust each other, but ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को भी कोई भी झूठा मैसेज कर दो और उनका पूरा रिलेशनशिप उसकी वजह से खराब हो जाए. So people have this tendency to ruin things, and they love that, and that is sad. So दुआ से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, that I can listen to दुआ for hours. So now it's time to wrap things, and it's time for दुआ to leave this famous couch, और वो वापस आएंगी. So until next time, we are going to end this with a special message by दुआ. All the girls watching, आप क्या मैसेज देंगी उनको? Maybe a message to दुआ, to a 18-year-old दुआ. क्या होगा वो मैसेज? So that बहुत सारी girls can relate to. If I can, I would definitely tell my younger self that just keep going, you can do it. और उसके साथ साथ मेहनत भी. Definitely. Trust on God, a lot of hard work, and then challenging your boundaries is very important. You cannot just stay in your boundary and trust magic to happen overnight. That does not happen. जैसे कि हमने दाना नीर की बात की थी, magic does happen to some people. It does not happen to everyone. So you cannot expect the same. आपको you have to create your own magic by just keep going. So just keep going and do not give up. Especially for the people who commit suicide or who are going through mental turmoil or mental depression. I just want to say them that I have been through depression. I have faced it. I have dealt with it, and I've came out even stronger. And God will bless you with everything that you want. Just don't give up. Until next time, मुझे और दुआ को दें इजाजत from the sets of What's Happening with Sara.